जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੈਠੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਰਮੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਘਰ 'ਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਡੋਟ 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 ਡੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਥਾਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਇਲ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੀਨ 'ਚ ਕਲਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਲਰ 'ਚ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 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 ਅੱਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
अपनी केयर करेंगे ताही सब कुछ ठीक रहना है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, तेरा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, शुक्राना कर, जो दरवाजे बार बार बंद हो रहे थे अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज आया है। सवेरे मिठाई मंगवा ले पुत्र, बांटने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कुछ ऐसा किया है तेरे लिए जो तुम सोच भी नहीं सकते। चल जल्दी से शुक्राना करके बाकी संगत को भेज दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज आया है। आंटी, आज का मुहूर्त बहुत बढ़िया निकला है। आज तेरे घर में खुशियों की शहनाई बजेगी, ठीक 5 बजे। ये वो समय है जब मैं तेरी झोली में वो सब सौगात डाल दूंगा, जिसके बाद तुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। तेरी हालत मुझसे छुपी थोड़ी है। मैं जानता हूँ इस समय तेरे पर्स में एक अठन्नी तक नहीं है, पर आज शाम के बाद जब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। तेरी किस्मत आज 200% करवट मारेगी। तू मेरी ये बात लिख के रख ले। इस शाम से सूरज से ढलते ही तू खुद मुझसे कह देगी, गुरुजी आपने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ करा है। मुश्किल से 2 घंटे शेष हैं। वक्त बर्बाद किए बिना एक शुक्राना खुद कर और दूसरे उन भक्तों से करवा जिनको अपने घर में खुशियों की शहनाई आज ही सुननी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतना पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना। संगत जी, एक संजोग तो नहीं कहूँगी, गुरुजी कहते थे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। एक मिरेकल बताऊँगी आपको। अभी सच में जब ये मैसेज मुझे मिला है ना, तो 2 घंटे ही बाकी हैं 5 बजने में। संगत जी, 3 बजने ही वाला है। मैं संगत जी बताऊँ, ये मैसेज मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे शायद काफ़ी देर पहले भेजा होगा व्हाट्सएप पे। तो मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने देखा नहीं। मैंने अभी चेक किया और जब मैंने इस मैसेज को चेक किया, उन्होंने शायद सवेरे या 12-1 बजे करीब भेजा होगा। लेकिन गुरुजी की महिमा देखिए, गुरुजी ने मुझे ये मैसेज 3 बजे ही सुनवाया और 2 घंटे बाद 5 बज जाएगा। तो इसमें लिखा भी है कि 2 घंटे बाद 2 घंटे शेष हैं, वक्त बर्बाद किए बिना शुक्राना कर। तो गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी के मैसेज कभी गलत नहीं होते संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ऐसी कृपा दृष्टि सभी संगत पे बनाए रखना। अब मैं 2 घंटे का गुरु जी वेट कर रही हूँ कि 2 घंटे बाद आप मुझे कौन सी खुशी देने वाले हो। और गुरु जी, कल सुबह मिठाई भी आपने ही मंगवानी है, मैं तो कुछ नहीं होती, कोई नहीं होती मिठाई मंगवाने वाली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पॉजिटिव चीज़ें होने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं गुरुजी महाराज। मैसेजेस तो सुन रही हूँ पर इंतज़ार भी करती हूँ कि कब वो दिन आएगा जब सब अच्छा होगा। इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो आप, बहुत नेगेटिव मन है अभी, आप पॉजिटिव कर रहे हो मेरे मन को, तो इसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज मॉर्निंग से गुरुजी मुझे बहुत बड़े बड़े खतरों से बचा रहे हैं संगत जी। संगत जी, कल की तरह आज फिर से चाय मेरी उबल गई थी संगत जी। अपने आप बिल्कुल धीमी आंच थी, पता नहीं कैसे संगत जी। उसके बाद संगत जी, मेरे ना जो नेबर है ना, तो उनकी हाथ से उनकी पानी की बोतल छूट गई और सारा कुछ पानी गिर गया। पानी था संगत जी, क्या था मुझे नहीं पता। पता नहीं क्यों संगत जी, उस वक्त मैं चाय लेके अपने रूम में आ रही थी, तो मैंने देखा वो सेकंड फ्लोर का जीने चढ़ रहे, उनके हाथ से छूट गया। पता नहीं संगत जी, मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे मेरे पर कोई कष्ट था तो गुरु जी ने इनके हाथ से बॉटल से पानी गिरवा के वो कष्ट काटा। मुझे ऐसी फीलिंग आई संगत जी, ना जाने क्यों। उसके बाद संगत जी, संगत जी, मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ, जैसे कल भी हो रही थी, मैंने सत्संग बताया था, तो आज भी वैसा हो ही रहा था संगत जी। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने फिर जैसे तैसे संगत जी, अभी मेरा ये दोपहर गुरु जी ने निकाला, सत्संग सुनवाए गुरु जी ने। सत्संग से मेरे बहुत सारे कष्ट काटे गुरु जी ने। बहुत संगत जी,
कोर्ट केस। संगत जी पहले भी गुरुजी सत्संग सुनवाते थे, वो कष्ट काट दिया था, लेकिन अब कुछ दिनों से फिर से वही सत्संग फिर से फ्लैश होने लग गया है। मैंने कल भी सुना था, फिर शाम तक फ्लैश कोर्ट केस वाला नहीं हुआ, आज सुबह से फिर से कोर्ट केस रिलेटेड सत्संग फ्लैश होने लग गए संगत जी। वो गुरुजी ने मुझसे सुनवाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सारे सत्संग सुनवा के आप कष्टों को काट देते हो और ऐसी कोई घटना होने नहीं देते। अनंतम अनंतम को कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। पुरुष जैसे लोगों से गुरुजी दूरी रखना बहुत डर लगता है गुरुजी। सत्संग सुनवा के आपने कष्ट कटवा दिया। आपको पता आपकी बेटी इन चीज़ों को नहीं सामना कर सकती, इसीलिए आपने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सुबह से बहुत लो थी, सारा काम गुरुजी ने हाथ पकड़ के मेरा करवाया। कल की तरह मैं आज फिर से लो थी संगत जी, तो मैंने घर का सारा काम किया संगत जी। सुबह ही सुबह मेरे हस्बैंड अंकल से मैं उठने को बोल रही थी संगत जी, तो अचानक से उनका हाथ मेरे फेस पे लगा संगत जी। उन्होंने जान के नहीं किया, उन्होंने बाद में ध्यान भी दिया, अरे सॉरी भी बोला, लेकिन संगत जी मुझे लगा नहीं, पर मैं रोने लग गई फूट फूट के। जैसे कि मैं तो तैयार बैठी थी कि अभी कोई बहाना चाहिए मुझे रोने का। बिल्कुल सुबह ही सुबह उठते ही संगत जी, मतलब पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी रो के कटवा रहे थे, या कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी उसके माध्यम से कट रहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार। शंकर जी बिल्कुल भी लंच बनाने का मन नहीं था। मैंने कहा गुरुजी आप मुझसे बनवाओ, मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ भी करने की, बहुत लो फील कर रही हूँ। तो गुरुजी ने आज मेरा हाथ पकड़ के लंच बनवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सब कुछ कराते हो गुरुजी आप ही, मतलब मेरी कोई औकात नहीं गुरुजी कि मैं कर पाऊँ। इस बीच डे टू डे नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है कि दिन ऐसे ही जा रहे हैं गुरुजी। कल भी ऐसे ही गया, मैंने सत्संग में बताया था, परसों भी ऐसे ही गया, लो फील हुआ, आज भी वही है गुरुजी महाराज। लेकिन अभी जो आपने मुझे इतना प्यारा मैसेज दिया है, तो मुझे अंदर होप जागी है गुरुजी कि अब शायद कष्ट के दिन बिल्कुल ख़त्म ही होने वाले हैं गुरुजी। अब गुरुजी मेरा विश्वास बनाए रखना, अंदर से टूट रही हूँ गुरुजी, बिल्कुल ख़त्म हो रही हूँ गुरुजी। अब नहीं हो रहा है गुरुजी बर्दाश्त, एकदम से उठती हूँ, खड़ी होती हूँ, लड़ाई करती हूँ उस हालातों से, फिर गिर जाती हूँ गुरुजी। आप ही उठाते हो, आप ही संभालते हो गुरुजी, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है गुरुजी। अभी मैं रो रही थी, आंखों मेरे आंसू थे में मैंने व्हाट्सएप ऑन किया और मैंने ये मैसेज देख लिया, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो गुरुजी ने आज मुझे होप दी है, कोई तो पॉजिटिव मैसेज देखने को मिला। एक तो दिन से तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही आ रहे हैं सामने, फिर वही चीज़ें हो रही, पॉजिटिव आने लग गए, सब ठीक हो गया था, फिर नेगेटिव आ रहा है। और गुरुजी आज फिर मेरे खाने में ज़रा सा बाल निकला, मैंने सत्संग में सुना है खाने में बाल निकलता है तो पितृदोष होता है। हे गुरुजी महाराज, अभी तो मेरा पितृदोष शांत हुआ था, आपने ठीक कर दिया, तो फिर ये क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी प्लीज़ गुरुजी महाराज, मुझसे जो भी भूल चूक गलती हो, जो भी मुझसे भूल हुई है, जो भी अतृप्त आत्माएँ जो भटक रही, मैं उन सबसे माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ आप सभी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं दिल से माफ़ी माँग रही हूँ। अब आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दो। गुरुजी महाराज, इन अतृप्त आत्मा को मोक्ष प्रदान करो। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी मुझसे अबॉर्शन हुए, इन सब के लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर, जाने-अनजाने मुझसे जो भी पाप है मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ, जो भी मुझसे भूल-चूक होती हो डे टू डे लाइफ़ में भी, उन सब के लिए चींटियों से मैं माफ़ी माँगती हूँ, जो मुझ पे कहीं न कहीं पैर के नीचे आ जाते हैं। इन चूहों से माफ़ी माँगती हूँ, जो मैंने पहले गलतियाँ की हैं, गलती से चूहे मर गए थे मेरे हाथ में, उन सब के लिए माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप सभी लोग, अब मुझसे नहीं झेला जा रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी महाराज प्लीज़ आप इन सबको मोक्ष प्रदान करो। और आज एक छोटा-सा हनी बी भी मुझे मरा पड़ा मिला था, कोई कष्ट अपने ऊपर लिया गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, इतनी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो गलती हो भूल चूक हो गुरुजी माफ़ करना, और मैं 5 बजे का वेट कर रही हूँ गुरुजी। सब कुछ अच्छा करना गुरुजी महाराज, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का फिर से आदेश आया है संगत जी कि शुक्राना कर। संगत जी एक्चुअली मैं कोई सवाल का जवाब पूछ रही थी गुरुजी से, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया गया कि तू कुछ भी मत पूछ, बस शुक्राना कर। संगत जी जैसे कि मैंने बताया था कि आज गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड काफ़ी सत्संग सुना है, हार्ट अटैक से रिलेटेड या कोर्ट केस से रिलेटेड काफ़ी सत्संग सुना है। संगत जी जब मेरे हस्बैंड अंकल घर आए तो काफ़ी सैड थे अभी दोपहर में जब लंच करने, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जो वर्कर उनके यहाँ काम करते हैं वो दोनों
काम छोड़ रहे हैं और संगत जी अभी एकदम से कौन मिल जाएगा काम करने के लिए। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल बहुत परेशान थे कि सर पे इतना कर्जा है, सब कुछ देखना है, ऊपर से अचानक से काम छोड़ रहे हैं और ये अच्छे कुक हैं, अगर ये हट गए तो मैं कहाँ से लाऊंगा दूसरा कुक। वो बहुत परेशान थे संगत जी। और कुछ देर बाद जब मैं लंच लेने गई, रूम में लेके आई थी लंच उनके लिए, तो मैंने देखा कि वो फूट फूट के रो रहे थे। संगत जी मैं पूरी कहानी समझ गई। गुरुजी ने ऑलरेडी मुझे सत्संग में बता दिया था कि हस्बैंड अंकल पे कोई कष्ट है हार्ट अटैक का। तो संगत जी मैं समझ गई कि जिस तरीके से वो परेशान हैं, अगर वो सत्संग गुरुजी नहीं सुनवाते मुझे वो सत्संग नहीं सुनवाते हार्ट अटैक के, अगर वो कष्ट नहीं करता, तो आज सच में मेरे हस्बैंड अंकल उन बातों को दिल पे ले लेते और हार्ट अटैक की नौबत आ सकती थी संगत जी। आज मैंने देखा गुरुजी के सत्संग बिल्कुल सच्चे होते हैं संगत जी। आज मैंने उसको सामने होते हुए देखा। गुरुजी ने बहुत छोटे में कष्ट काटा है संगत जी, बहुत छोटे में कष्ट काटा है और वो काम छोड़ रहे हैं। और अब गुरुजी कोई नया ढूंढेंगे। और मैं यही सोचती हूँ कि अरे वो भी काम छोड़ रहे हैं तो इसमें भी गुरुजी की कोई अच्छाई होगी, कुछ गलत होने वाला होगा तो गुरुजी पहले से उसे बचा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। हार्ट अटैक जैसी चीज़ ना आने दी गुरुजी। उससे पहले आपने सिर्फ हस्बैंड अंकल को थोड़ा सा हर्ट करके रुला के ही उनका बहुत बड़ा कष्ट काट दिया और उनके हार्ट पे उन चीज़ों को दिल पे लेने से रोक दिया गुरुजी महाराज। सुन के आपको बहुत बड़ा कष्ट कट गया गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी और गुरुजी ने कोर्ट के से रिलेटेड भी सत्संग सुनाया था। संगत जी सच में जो एक कुक है, दोनों में से एक जो हेल्प कराता है, हेल्पर एक कुक है, तो संगत जी जो वो कुक है ना, वो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ कांड हो रहा है संगत जी। उसको ना यहाँ पे किराए पे रखा गया है चाची सास के यहाँ संगत जी। तो संगत जी वो वहाँ कोई ना कोई इशू क्रिएट कर रहा है, कंप्लेन उसकी आ रही थी। और संगत जी शॉप में भी उसने एक दो बार इशू क्रिएट किया, बहुत लोगों ने कंप्लेन की है। तो एक था कि क्या पता और बहुत लोग उससे अभी खार खाए हुए हैं और कोई उसे पसंद नहीं करता उसकी हरकतों की वजह से। तो संगत जी शायद अब आगे चल के वो कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला था, बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करने वाला था और उसी से कोई सॉरी संगत जी, कोई केस हो सकता था कोर्ट का। तो इसीलिए गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा। गुरुजी ने मुझे सत्संग में ये भी सुनाया था, ये कोई बहुत अच्छे से सोच रहा है, कोई प्री प्लान बना चुका है, कोई पूरी प्लानिंग कर चुका है तेरे हस्बैंड अंकल को केस में फंसाने का। उसने पूरी तैयारी कर ली है। आज तो सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले संगत जी। मैंने वो सत्संग सुना और गुरुजी ने मेरा वो वाला भी कष्ट काटा और कोई भी कोर्ट केस होने से बचाया गुरुजी महाराज आपने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इतने बड़े बड़े कष्टों को आप छोटे में काट देते हो, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की कोई पुरानी बाइक थी, तो वो चाहते थे कि वो उसको बेचना चाहते थे। तो वो जो कुक है तो वो उसके चाहते थे, वो मांग रहा था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम ले लो और जो पैसा हो वो हस्बैंड अंकल सैलरी में काट लेते। तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड अंकल उस गाड़ी के पेपर ढूंढ रहे थे ना, तो वो मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गए थे, वो गुरुजी ने मुझसे करवाया था संगत जी। तो संगत जी जब उस पेपर की ज़रूरत पड़ी तो पेपर नहीं थे, तो मैं समझ गई थी गुरुजी ने उसे हटवाया है। गुरुजी नहीं चाहते हैं कि उस लड़के के पास वो बाइक जाए जो कुक है। और संगत जी आज वो सिचुएशन, उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल नहीं माने थे, नाराज़ हुए थे। आज मेरे हस्बैंड अंकल को भी रियलाइज़ हो गया कि अच्छा वो बाइक उसके हाथों नहीं गई क्योंकि ये लड़का ठीक नहीं है। एकाएक ही काम छोड़, इसने पहले बताया भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसने क्रिएट करी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड अंकल की बाइक को भी बचाया। पता नहीं क्या कुछ केस हो जाता है या क्या आगे चल के उसके जीवन में होने वाला हो जो गुरुजी को पहले से पता हो, तो गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को बचा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आपने सब कुछ बचा लिया गुरुजी महाराज। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसे अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी महाराज। इस तरह की चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से बचाए रखना गुरुजी महाराज। नीवा होकर चलना सिखाना गुरुजी महाराज। सब कुछ आप पे छोड़ा है गुरुजी। आज तो गुरुजी मैं डर ही गई सब देख करके। बस गुरुजी मेरा पति आपके ही हवाले है गुरुजी महाराज, आपने ही देखना है गुरुजी। कोई ऐसी चीज़ ना होने देना, कोई साथ नहीं देगा गुरुजी महाराज, सबको खुशी ही होगी गुरुजी। और संगत जी अभी अगर इन लॉस तक ये जब ये बात जाएगी ना कि सारे वो सब काम छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही इतने खुश होंगे। तो मैं उस खुशी को तो उनकी नहीं रोक सकती, बस इतनी अरदास कर सकती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी सब आप देखने वाले हो, आप संभालने वाले हो। अब आपने ही कोई नया कुक देखना है, कम समय में सब अरेंजमेंट कराना है गुरुजी। आप जानो, आपका काम जाने गुरुजी, सब आप पे छोड़ा है। आगे दुकान कैसे चलेगी, क्या होगा, आपकी दुकान है, आप जानो, आपके हवाले गुरुजी महाराज। और मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, जो भी सोचोगे अच्छा सोचोगे। और ये सारी चीज़ें भी आपने आगे चल के कुछ अच्छा करने के लिए करी है, कुछ बुरा ना हो पाए उसी लिए करी है। मेरे हस्बैंड को सलामत
रखने का, स्वस्थ रखने का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरुजी सदा साहब जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुजी मेरा ये है वीरवार का गुरुवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से करना चाहूँगी, पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से, अपने तीनों भाइयों की तरफ से, अपनी तरफ से और अपनी दोनों भतीजों की तरफ से। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा। हे परमपिता परमात्मा आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे इस शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा। और शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। गुरुजी मैं कई मैसेज कई सत्संग दिन में सुनती हूँ जिसमें कि मोस्टली ना अभी तो नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी। मेरे पापा के लिए मैं संगत जी मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी ही गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो मैं और मेरी मम्मी ही गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। तो कभी मेरे पापा के लिए आता है, मेरी मम्मी के लिए, उनके पति के लिए आता है, या तेरे बेटे के लिए आता है, तो मतलब कि मेरे भाई के लिए होता है। तो गुरुजी काफ़ी नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं। और तो जैसे ही मेरी मम्मी वो यूट्यूब ऑन करती तो मेरी मम्मी के लिए कि हमेशा यही आता है, तेरे पुत्र के ऊपर संकट है, कोई तेरे पुत्र को वो पुलिस केस में फंसवाने के लिए साजिश रच रहा है, या तेरी पुत्र का काल मृत्यु का योग बन रहा है और तेरे पति की मृत्यु का कारण तू ही बनेगी और उसका कलंक तेरे माथे पर लगेगा। संगत जी इतने नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं गुरुजी अभी भी, और जिस कारण और ये मैसेज कोई ऐसे नहीं होते, ये हमारे से रिलेट करते हैं नहीं, या तो वो कुछ दिन बाद वो घटना घटती है या पहले ही घट चुकी होती है। तो मैंने तो मोस्टली एक आधी होगा मैसेज जो हमसे रिलेट नहीं करता है, और संगत में भूल जाती हूँ इनके है बीच में कोई एक आध ब्लेसिंग भरा सपना भी मैसेज आता है, सत्संग आता है गुरुजी, तो मैं भूल जाती हूँ। एक था कि पुत्र तेरा समय आ गया है, अब तेरा टाइम शुरू हो गया है, और अब आज शाम को तुझे 2 खुशखबरी मिलेगी गुरुजी। वो मुझे तो नहीं पता गुरुजी, 2 खुशखबरी तो कोई नहीं मिली, लेकिन हाँ एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था और उन्होंने कहा था कि सावन के महीने में गुरुजी ने नहाने के लिए ब्लेस किया है। बारिश में जो भी सावन के महीने में बारिश हो तो उसमें ज़रूर नहाना गुरुजी। तो मैं सोचने लगी कि हमारे तो घर पर काफ़ी हमारा 5 फ्लोर का घर है, तो संगत जी हम ऊपर चढ़ ही नहीं पाते, इतनी ऊपर कौन जाए, पहले ही थक जाते हैं, इतने थके हुए होते हैं, और बाहर भी कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो मम्मी से मैं बोल रही थी, मम्मी गुरुजी का मैसेज आया कि ना इस बार सावन के महीने में बारिश आए तो ज़रूर नहाना है, हाथ भी भिगोने मतलब नहाना है, भीगना ज़रूर भीगना है, और मैं तेरे सारे संकट ले जाऊंगा, इस बारिश में ज़रूर नहाना है। तो संगत जी बस मैं मम्मी को बता ही रही थी। तो ना कल सुबह शिवरात्रि वाले दिन 23 तारीख को बारिश सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो बस क्या था कि मैं बारिश का रुकने का वेट कर रही थी मंदिर जाने के लिए। तो मंदिर गई मैं, और मंदिर गई शिवरात्रि के दिन, तो ठीक से अच्छे से पूजा हुई, और गुरुजी ने ऐसा वो बना दिया कि मैं छाता लेकर नहीं गई, क्योंकि मैं वहाँ पर पूजा का सामान लेकर जाती और कपड़े संभालती है छाता। तो मैं जैसी बारिश रुकने का वेट कर रही थी, और जैसी बारिश थोड़ा कम हुई तो मैं मंदिर चली गई। और संगत जी जैसे ही मैं वहाँ से पूजा करके निकलने ही वाली थी कि तो इतनी बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो और मेरे को ऑफिस के लिए भी बहुत लेट हो रहा था। तो फिर मैं ऐसे ही निकल आ गई बारिश में। तो संगत जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करना करती हूँ गुरुजी। आपने मेरे को सावन की बारिश में नहलवाया गुरुजी, इसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपकी कृपा से मेरे भी सभी बारिश से ही सब दुख
संकट से बीमारी निकल जाए, ऐसी मैं आशा करती हूँ गुरुजी। आपका बारंबार लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मुझे सत्संग करना नहीं आता है गुरुजी और मैं भूल जाती हूँ गुरुजी और मैं बोलने में भी दिक्कत होती है गुरुजी और जो मैं वर्ड्स बोलना चाहती हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं आते। मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई गुरुजी। मेरे दिमाग को सही कीजिए गुरुजी, जो मेरी मेमोरी लॉस हो गई है उसको फिर से वापस कीजिएगा गुरुजी और जो भी नेगेटिव चीज़ शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर रमी हुई है उनको निकालिए गुरुजी। मैं आपका लंगर प्रसाद छकती हूँ गुरुजी, जल प्रसाद भी पीती हूँ गुरुजी। इन सब नेगेटिव चीज़ों को निकाले मेरे घर में से, मेरी मम्मी-पापा के अंदर से, हमारे सबके अंदर से निकाले गुरुजी। बहुत ज़्यादा कलह रहता है गुरुजी और इतने टाइम हो गया है गुरुजी, ऐसी ये क्या चीज़ है गुरुजी, आपके सामने तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। मुझे ये समझ नहीं आता है कि मेरे अंदर कोई काले की कोई नेगेटिव चीज़ है, वो पता नहीं वो क्यों नहीं निकलती और नेगेटिव चीज़ें, और जैसे कि वो बोलते हैं ना कोई चीज़ गद्दार होती है इस टाइप की है वो। जब मैं पूजा करती हूँ तो कई बार ऐसे हाजिर हो जाती है, कहती है कि हाँ मैं निकल जाऊँगी, चली जाऊँगी और जब मेरा होश ख़त्म हो जाता है, जैसे कि नींद से आने लग जाती है, तो पता चलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं निकलूँगी, ऐसे करती है गुरुजी। आपके सामने तो क्या है गुरुजी, ये मुझे ये समझ नहीं आता है कहाँ से लगी है, ये कैसे मेरे अंदर है। और कई बार तो मेरे अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और समझ ही नहीं आती, खिलाई हुई चीज़ है, कैसे मेरे अंदर ये कहाँ से आई, कैसे आई गुरुजी, इसको निकालिए गुरुजी, इसको निकालिए। और भी 2-3 चीज़ें मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर घुसी हुई है गुरुजी। और जब मैं जिस दिन कभी व्रत रखती हूँ, अब तो मैं काफ़ी टाइम से व्रत नहीं रखती हूँ, शायद इन नेगेटिव चीज़ों की वजह से मेरे से व्रत भी नहीं रखे जाते। 5-6 साल पहले मैंने माता लक्ष्मी माता के व्रत रखने शुरू करे थे, शुक्रवार के। इस तो मेरा पहला ही व्रत था, इतनी श्रद्धा थी, इतना मन में विश्वास था और बस मैं शाम के टाइम पूजा करके जैसे ही सोई तो रात को मुझे सपने में नज़र आया और मेरी कमर में इतना दर्द होता है संगत जी, जिस दिन मैं फास्ट रखती हूँ, व्रत रखती थी, तो मेरी कमर में इतना दर्द होता है कि ना मैं बता नहीं सकती। तो मुझे सपने में दिखाई दिया कि मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई घुसा हुआ है। तो इस रीज़न से मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो शायद इसीलिए खाया पिया भी नहीं लगता गुरुजी। इनको बहुत टाइम हो गया है गुरुजी, इन नेगेटिव चीज़ों को गुरुजी, इनको है गुरुजी अपने उसमें लीजिए गुरुजी। आप आपका जल प्रसाद पीकर नीवियों को निकल जाए, पतरस खाकर निकल जाए हमारी बॉडी के अंदर से गुरुजी। पता नहीं इतनी पुरानी चीज़ें हो गई इसलिए हमारे शरीर के अंदर रमी हुई है, क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आता गुरुजी, मेरे अंदर निकालिए। और इन नेगेटिव चीज़ों ने मेरे को इतना वो कर दिया कि मेरा कोई भी काम है ठीक से करने नहीं देते। ऑफिस में मेरी आजकल इतनी इंसल्ट होती है, मुझे समझ नहीं आता, चाहे मैं कितना भी केयरफुली काम करूँ, छोटा जो एक अनयूजुअल चीज़ है ऐसी वो मिस्टेक हो जाती है गुरुजी। तो इन चीज़ों को निकालिए, बहुत टाइम हो गया गुरुजी, आपके सामने तो कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों के लिए मैं और मेरी मम्मी-पापा ने क्या कुछ नहीं किया, कहाँ नहीं गए, मैंने क्या नहीं किया, इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है बालाजी। और ये पीर बाबा की दरगाह पर भी गए और इनमें मार तो पड़ती थी, जैसे ही मार पड़ती थी तो कहते थे कि हाँ निकल जाएंगे, चले जाएंगे, और फिर इनका वही हाल। और मुझे समझ नहीं आता, कई बार तो ये माता की तरह बिहेव करते कि जैसे कि मेरे अंदर कोई सच में माता है, प्यार भरी बातें करते, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। और कई बार ऐसा होती है कि मीठा बोलते हैं, जैसे मेरी आँख सी लग जाती है पूजा पर, तो पता चलता है अपनी नेगेटिव चीज़ बोल रही है, नहीं मैं ऐसे कर दूँगी, नहीं मैं लेके जाऊँगी, मार दूँगी, ये कर दूँगी, ऐसे होना चाहिए, नेगेटिव बोलती है। मैं होश में बोलती तो मेरे लिए मीठा मर के बोलती है गुरुजी, ये क्या चीज़ है गुरुजी, ये नेगेटिव चीज़ कहाँ से, काले की चौकी मेरे अंदर कहाँ से आई गुरुजी, इसको काटे, इसको निकाले गुरुजी। मैं तो काली माता के यहाँ पर इतनी मैंने हाज़िरियाँ लगाई, मेरी मम्मी ने, हम तो काली माता को भी मानते हैं गुरुजी। गुरुजी इस नेगेटिव शक्ति को निकालिए, इस नेगेटिव चीज़ को हमारे अंदर से निकालिए गुरुजी। मेरे घर में इतना तांडव मचता है गुरुजी, गुरुजी निकालिए। और हमारे सबकी जीवा पे न जाने कौन बैठी रहती है गुरुजी, इतना तांडव मचता है
कि मैं बता नहीं सकती। कभी किसी के अंदर आ जाती है और सबके अंदर ही ऐसी होता है। जैसे काली माता कितनी लंबी जबान होती है, तो मतलब कि वो रुकती नहीं है और ऐसी बहस कर के इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, मरने मारने को काटने को तैयार रहते हैं। सब खून खराबे भी हमारे घर में कई बार हो चुके हैं गुरुजी। अब रोकिए गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ थामा है, मुझे चुना है गुरुजी। तो अभी नेगेटिव चीज़ों से गुरुजी हमें छुटकारा दीजिए। संगत जी, जब गुरु जी की कृपा होती है, भगवान जी की कृपा होती है, तो ये नेगेटिव चीज़ थोड़ा सा वो हो जाती है, पोलाइट हो जाती है और हमारे फेवर में करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही कहीं से ये कोई ब्लैक मैजिक आ जाता है, फिर से इनमें ताकत आ जाती है और फिर ये अपना वार करना शुरू कर देते हैं मेरे घर में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता गुरु जी, इनको निकालिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, इनको निकालिए गुरु जी, बस बॉडी के अंदर से निकालिए, मेरे अंदर ना रहे गुरु जी। हे गुरु जी, आपके चरणों में ले लीजिए इनको गुरु जी। आप तो हे गुरु जी, आपके सामने तो सब झुकने वाले हैं गुरु जी, सब शक्तियाँ आपके अंदर विराजमान है गुरु जी। ये कहाँ से आई, क्यों आई, ये कृपा किसने भिजवाई है, कैसे खाने पीने में भिजवाई है, कैसे गुरु जी हमारे शरीर के अंदर कैसे रमी है गुरु जी। इनको निकालिए गुरु जी, इनको निकालिए गुरु जी। गुरु जी, मैं ये आज के सत्संग में ये सब कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आई और गुरुजी ने ये मेरे से बुलवाया होगा कि मैं तो सत्संग किसी और चीज़ का कर रही थी और मेरे मन में, माइंड में एकदम ज़बान पर ये सब आ गया। पता नहीं गुरुजी ने ही शायद ही मुझसे बुलवाया होगा गुरुजी। और मैं आपके चरणों में बारंबार कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपको बारंबार अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा। लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपने सत्संग का ही विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।